Hello friends, we are now going to start with the problem statement on journal entry. Before going to that, I want to bring before you that the 10 adjustments which we had made in the last 4 classes. Right? This will definitely give you an insight that how the journal entries are made and what are its fundamentals. If you are really strong in journal entry, I believe that you will definitely build a very big house of accountancy. And if you are good in accountancy, then definitely in most of the commerce subjects you will be doing excellently well. So friends, as you know, we have got two stakes. One is your increase, another one is your decrease. And asset increase, debit. Liability increase, credit. Asset decrease, credit. Liability decrease, debit. Expense, debit. Income, credit. This is the word. These 6 words only will lead you to the expertise on journal entry. So you have read the question and please read the question very thoroughly, and we will be starting with your adjustment number 1. On 1/4/2022, Mr. Ajit started a business with cash. Ajit is the proprietor. So this is adjustment number 1. Date is your 1/4/2022. And this is journal entry is to be passed in the books of Ajit. That is in the books of the business. It is not a personal Ajit, it is a business. So what he is doing, Mr. Ajit starting business. जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, what are the things he is bringing in? Na cash. So let me write you cash. So cash is how much? 60,000. So 60,000 is your cash. Another one is your furniture. He is also bringing furniture 15,000. And 10% loan from bank. He has a bank loan. कितना ना 10,000. He has a bank loan which he bring it into the business. ये लोन पर्सनल लोन था, but he is bringing in that loan into the business. So अभी बिजनेस जब लोन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बिजनेस का लायबिलिटी हो जाएगा. बिजनेस को ये लोन पेमेंट करना होगा, राइट? So it is a liability. Therefore, I am writing here 10% loan. कितना? 10,000. Another one, that is your creditor. क्रेडिटर क्या होता है ये तो आपको पता है. अगर हम रॉ मटेरियल परचेस किए, गुड्स परचेस किए, पेमेंट नहीं किए, तब सप्लायर को पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर
ट्रेड क्रेडिटर, इस तरफ का नाम में बुलाते हैं। सो क्रेडिटर इज अगेन ए लाइबिलिटी, माई लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। क्यों ना, मेरा क्रेडिटर, बिजनेस इज टेकिंग ओवर द क्रेडिटर। सो ये बिजनेस का लाइबिलिटी है कि क्रेडिटर को पेमेंट करेगा, इसलिए द क्रेडिटर इज ए लाइबिलिटी एंड द लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। दिस इज क्रेडिटर। कितना? 5000। ओके, देन ही इज ऑल्सो ब्रिंगिंग डेटर। डेटर क्या होता है? मान लीजिए कि मैं उधार में कोई चीज को सेल किए, सो उससे तो पैसा मिलेगा, वो तो मेरा कस्टमर है। आपको कस्टमर से जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग मानते हैं डेटर। आपको कस्टमर से जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग मानते हैं डेटर। सो डेटर इज गिवन यू एज ₹15,000। So friends, your furniture 15,000, debtor 15,000, right? Now I like to tell you the nature that, as you know, the cash is a asset. Cash is coming into the business. This is asset. Cash is a asset. Furniture is a asset. डेटर से हमको पैसा मिलेगा, वो कस्टमर हमको बाद में पैसा देगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। सो इन दिस केस एसेट इंक्रीज। सो व्हेन एसेट इंक्रीजेस तब क्या होगा ना, डेबिट। सो व्हेन द एसेट इंक्रीजेस it is debited and 10% loan is a liability and creditor is a liability. So when these are all liability, when liability increase, अगर liability increase होता है, ये मेरा liability है, राइट? अगर आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा तब ये क्रेडिट। उल्टा होता है, एसेट बढ़ने से डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। क्लियर? सो एसेट बढ़ने से डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, राइट? क्योंकि आप लोन लिए हैं, लोन तो आपको पेमेंट करना है, इसलिए लोन इज ए लाइबिलिटी। आपको क्रेडिटर लोग को पेमेंट करना है क्योंकि वो लोग आपका माल सप्लाई किया था, तो इसलिए क्रेडिटर इज ए लाइबिलिटी। डेटर से पैसा मिलेगा, फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। सो डेटर इज ए एसेट, राइट? अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग ये किए थे कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हम लोग पढ़े थे। क्या? एसेट इज इक्वल टू योर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। नाउ ये एसेट हमको पता हो गया, लाइबिलिटी पता हो गया। टोटल एसेट कितना ना, 60 प्लस 15, 75 प्लस 15, ये आपका टोटल हो गया 90,000। और लाइबिलिटी कितना टोटल ना, 10 प्लस 5, टोटल लाइबिलिटी आपका 15,000। सो एसेट अगर मैं इस तरफ लिखेंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी। सो हमको एसेट पता है, कितना एसेट ना 90,000, और लाइबिलिटी कितना ना 15,000 इज द लाइबिलिटी। तब मेरा कैपिटल कितना होगा, 75,000 इज द कैपिटल।
सो एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ये अकाउंटिंग इक्वेशन से भी आपको पता हो जाता है, राइट। सो तब इसको देख के हम लोग जर्नल पास करेंगे। तब क्या जर्नल करेंगे? आपका कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये आपका 60,000, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये आपका 15,000, डेटर जो कस्टमर से पैसा मिलेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट, ये भी आपका 15,000, ये टोटल हो गया आपका 90,000। नाउ टू 10% लोन, ये आपका 10% लोन फ्रॉम बैंक, ये आपका 10,000, दिस इज क्रेडिट। ये आपका टू क्रेडिटर, creditor is also a liability, right? So creditor is 5,000, ये टोटल आपका 90, this is 15, the balancing figure is your capital. ये आपका 75,000, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड with cash, furniture, debtor, creditor and loan, right? So this is the journal entry here and these are all assets. अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तब इट इज डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, दिस इज योर क्रेडिट, कैपिटल इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी, देयरफॉर इट इज अगेन क्रेडिट, राइट? सो दिस इज द एंट्री नंबर 1 था. Let us come to the next journal entry. This is opened a bank account for 20,000. एक 20,000 दे के बैंक में एक अकाउंट देते हैं, तब क्या होता है ना, ये मेरा ऑफिस का कैश बॉक्स है, इसमें कितना पैसा था ना, 60,000 पहले था. ये कैश बॉक्स, ये बिजनेस का कैश बॉक्स होता है. ये बिजनेस कैश बॉक्स से मैं सोचते हैं कि मैं एक अकाउंट खोलेंगे कोई बैंक से, कोई बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो कुछ पैसा जमा देना है. सो बिजनेस से आपका 20,000 मेरा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, पासबुक में आ जाएगा. सो बैंक में 20,000 जमा हो जाएगा, राइट? ये मेरा बैंक है
अब आप सोच लीजिए, मेरा कैश एक एसेट होता है, मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज, कैश बैलेंस डिक्रीज। अगर एसेट डिक्रीज होता है तब क्रेडिट, क्योंकि एसेट डिक्रीज होता है इसलिए क्रेडिट। और मेरा बैंक का बैलेंस, बैंक भी आपका एसेट है, ये भी आपका एसेट, राइट। ये एसेट इंक्रीज, वो आपका डेबिट। जब एसेट इंक्रीज होता है ये आपका डेबिट, और आपका कैश डिक्रीज होता है ये आपका क्रेडिट। सो जर्नल एंट्री क्या होगा? अल्टीमेटली अल्टीमेट जर्नल एंट्री इज योर बैंक अकाउंट डेबिट। पहले हम लोग डेबिट लिखते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका कैश बॉक्स से 20,000 निकल जाएगा, और कैश बॉक्स में बैलेंसिंग फिगर कितना रहेगा ना 40,000। सो टू कैश कितना निकलेगा कैश ना 20,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपका पासबुक में जब आप पासबुक आपको मिलेगा तब देखो पासबुक में रहेगा आपका 20,000 जमा, क्लियर। और कैश बॉक्स में 20,000 आपका कम हो जाएगा। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। नरेशन विल बी बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, being the cash deposited into bank, right? Let us come to the next journal entry. Please go through the question. That is 5/4/2022. 5/4/2022. Purchased goods from Mr. K for ₹40,000. ट्रेड डिस्काउंट 15%। ये क्या होता है? मैं आपको आगे भी बोले कि ट्रेड डिस्काउंट आपका जो सामान का दाम है, बिल जब बनाएगा सेलर तभी वो लेस हो जाता है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट कम एनी हायर इन द अकाउंट्स। मान लीजिए कि आप कोई दुकान में गए हैं एक शर्ट परचेस करने के लिए, शर्ट का ऐसे एमआरपी था 1,000 और शर्ट में एक स्टिकर है, लिखा है कि 40% डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट है। और जो 1,000 शर्ट का एमआरपी लिखा है 40% डिस्काउंट, आपको जब बिल बनाएगा सेलर तब आप पेमेंट करेंगे ना बिल लेकर के, तब 1,000 माइनस 40% आपको 600 रुपीज का एक बिल बनेगा। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट आपका परचेस प्राइस या सेल्स प्राइस कुछ भी हो वो लेस हो जाता है, एंड ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट कम इन अकाउंट्स। जो कैश डिस्काउंट होता है वो आता है बाद में, हम लोग कैश डिस्काउंट में आएंगे। सो ही परचेज्ड गुड्स 40,000, गुड्स का दाम कितना था 40,000। आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, कितना ना 15% डिस्काउंट, ये आपका 6,000, 40,000 का अगर आप 15% करेंगे तो 6,000, तो आपको बिल बनेगा कितना 34,000 का बिल बनेगा, इनवॉइस बनेगा, जो भी आप सोच सकते हैं। सो ये जो परचेस करते हैं उसमें दिया है मिस्टर के, आपको नाम दे दिया। अगर नाम दे दिया कैश परचेस नहीं बोला है
तब सोचना है कि दिस इज ए क्रेडिट परचेस, उधार में परचेस किए। सो ये जो परचेस होता है, मेरा परचेस का दाम कितना ना 34,000। परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। आप परचेस किए इसलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर, तब ये डेबिट। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब ये डेबिट, राइट। और किससे? मैं कैश देकर के परचेस नहीं किए, मैं मिस्टर के से परचेस किए, उधार से। उधार मीन्स मेरा क्रेडिटर, मेरा लाइबिलिटी, मेरे को पेमेंट करना है फ्यूचर में। आई एम लाइबल टू पे, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। मेरे को पेमेंट करना है, मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा। जब लाइबिलिटी बढ़ेगा आपका क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट। सो किससे परचेस करते हैं? मिस्टर के से, और मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ने से ये क्रेडिट, राइट। ये तो मैं आपको कितना बार बोले हैं। तब जर्नल क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट 34,000 to Mr. K's account 34,000, और नरेशन रहेगा being the goods purchased on credit, being the goods purchased on credit. So purchase account debit to Mr. K account. जब मैं उधार में परचेस किए मेरा लायबिलिटी ज्यादा होता है, लायबिलिटी ज्यादा होने से क्रेडिट, बिकॉज आई एम लायबल टू पे। एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से जो मैं परचेस किए ये मेरा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से डेबिट, इसलिए परचेस डेबिट। पहले हम लोग डेबिट लिखते हैं, परचेस डेबिट, मिस्टर के अकाउंट क्रेडिट। Now we are going to, that is 8/4/2022, paid Mr. K the amount due to him and allowed discount 10%. So K मेरा क्रेडिटर था, मैं उधार से परचेस किए थे माल, कितना सामान कितना परचेस किए थे 34,000, और 8 तारीख में मैं उसको पेमेंट कर देते हैं। सो 34,000 में किसको पेमेंट किए? के को। के मेरा लायबिलिटी था, ये मेरा क्रेडिटर था। कितना पेमेंट करना था? 34,000। जब मैं 34,000 पेमेंट कर दिए, के खुश होके फ्रॉड पेमेंट के लिए वो हमको 10% डिस्काउंट दे देते हैं। सो क्या डिस्काउंट? ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ट्रांजैक्शन होने का बाद डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एक तो डिस्काउंट होता है आपका ट्रांजैक्शन का आगे, वो ट्रेड डिस्काउंट, वो कहाँ अकाउंट्स में नहीं आता है। दूसरा डिस्काउंट होता है आप अगर पेमेंट करते हैं तो कोई छूट मिलता है। जब वो 34,000 में के को पेमेंट किए, वो हमको 10% डिस्काउंट दे रहा है। सो 3,400 डिस्काउंट, 30,600 पेमेंट,
कितना पेमेंट करना है? 30,600। और वो 30,600 में कैसे पेमेंट करेंगे? कैश ना बैंक, कैश में। आपको चेक का बारे में नहीं बोला है, बैंक से पेमेंट होता है, इस तरफ का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तब आप सोच लीजिए कि जो आप पेमेंट करते हैं दिस इज ऑन कैश। सो में कैश पेमेंट करते हैं कितना ना 30,400। कैश अगर मैं पेमेंट करते हैं, कैश मेरा एसेट, पेमेंट करने से कैश घटेगा, सो कैश एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज में क्रेडिट हो जाता है, ये मेरा एसेट है और एसेट डिक्रीज होता है इसलिए दिस इज क्रेडिट, राइट। सो ये मेरा लायबिलिटी, मेरे को एक के को कितना पेमेंट करना था 34,000 में डिस्काउंट हमको मिला है, वो डिस्काउंट क्यों दिया है ना, मैं जल्दी जल्दी उसका पैसा पेमेंट कर दिए इसलिए दिया है, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट पेमेंट। और ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए मेरे को जो मिलता है वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। दिस इज ए डिस्काउंट रिसीव, हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ये मेरा इनकम है। अगर मैं डिस्काउंट नहीं मिलेगा तब मेरे को 34,000 पेमेंट करना है। सपोज आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी डिस्काउंट, तब आई विल हैव टू पे 34,000. Now I am going to pay 30,600. इसलिए मैं पेमेंट कम कर रहे हैं। When I am paying less, it is my income. क्योंकि मैं पेमेंट कम करते हैं, so income increase. So this is a discount. This cash discount, this is a income increase. अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो मैं बोले थे कि ये क्रेडिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी आपका घट रहा है इसलिए डेबिट, राइट। सो मेरा लायबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए इसलिए मेरा लायबिलिटी खत्म हो जाता है। लायबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट, और ये मेरा इनकम, कोई मेरे को खुश होके कुछ छूट देता है, समथिंग दे आर गिविंग मी एज इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, देयरफॉर इट इज माय इनकम, इनकम क्रेडिट। और कैश मेरा घट रहा है, कैश इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर दिस इज आल्सो क्रेडिट। सो what will be the journal entry? Let us write the journal entry. So ये prompt payment के लिए आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, this is discount received, right? Now this is 0804/2022 and on this date आपका कितना पेमेंट करते हैं? मिस्टर के अकाउंट डेबिट 34,000 जो मेरा उधार था वो पेमेंट हो जाता है टू कैश। सो टू कैश अकाउंट 30,400 to discount receipt
30,600. This is 3,400. So this is a liability. नरेशन इस तरफ लिखना है कि being the amount paid to Mr. K with 10% discount. So this is a liability decrease, इसलिए डेबिट. दिस इज ए लाइबिलिटी. कैश डिक्रीज, दिस इज एसेट, इसलिए क्रेडिट. डिस्काउंट रिसीव इज ए इनकम इंक्रीज. आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट. एक्सपेंडिचर डेबिट, इनकम क्रेडिट. डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम. Right? Now we are going to the next journal entry. This is your 2022 sold goods for ₹50,000 to Mr. Sujit. सुजीत इज ए कस्टमर. मैं उसको गुड्स सेल कर रहे हैं. जब मैं सेल करते हैं तो कोई कस्टमर का नाम दे दिया आपको. मैं आपको ये स्टोरी बहुत आगे भी कितना बार बोले हैं. सपोज यू हैव गॉन टू द शॉप. पैसा लेके आप शॉप में गए, उनको 10 रुपया देकर के एक पेन ले लिए, वो आपको नाम नहीं पूछेगा. अगर आप गए हैं एक पेन परचेस करने के लिए और बोलते हैं कि मैं कल आपको पैसा दे देंगे, तब वो खाता में लिखेगा, आपका नाम लिखेगा. तो इसलिए इधर भी देखिए, जो 12 तारीख में एंट्री है, सोल्ड गुड्स 50,000 टू मिस्टर सुजीत. सुजीत का नाम दिया है, कैश सेल बोल के कुछ नहीं बोला है, तब में सोचेंगे कि ये मेरा क्रेडिट सेल है. क्या है? ये मेरा क्रेडिट सेल है. सब कैसे करेंगे? क्रेडिट सेल होने से. कितना क्रेडिट सेल? 50,000. सेल तो मेरा इनकम होता है, ये तो आपको पता है कि परचेस मेरा एक्सपेंडिचर और सेल मेरा इनकम, क्योंकि सेल करने से आपको इनकम होगा. और जब मैं सेल करते हैं किसी से तो पैसा, एक तो सेल तो आपका क्रेडिट होगा. सो डेबिट किसको लगाएंगे? क्योंकि सुजीत से हमको पैसा नहीं मिला है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा. फ्यूचर में कस्टमर से पैसा मिलेगा. अभी पैसा वो नहीं दिया है, इसलिए सुजीत इज ए कस्टमर. उसको डेबिट करेंगे क्योंकि वो मेरा एसेट, डेटर, इसलिए मैं सुजीत को डेबिट करेंगे. सो मिस्टर सुजीत अकाउंट डेबिट. मिस्टर सुजीत अकाउंट डेबिट 50,000 to sale account 50,000, being the goods sold on credit. Being the goods sold on credit. So सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. आपका सुजीत जब आप सेल कर देते हैं, पैसा तो नहीं मिला. अगर पैसा मिला है तो कैश डेबिट, चेक मिलेगा तो बैंक डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ेगा.
अगर ये दोनों नहीं मिला है तो क्रेडिट में सेल करते हैं, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो आपका कस्टमर हो गया, वो आपका डेटर हो गया, वो भी आपका एसेट। इसलिए दिस इज एन एसेट, इन एसेट इंक्रीज, ये आपका एसेट इंक्रीज, इसलिए डेबिट। और सेल आपका इनकम, इनकम इंक्रीज, इसलिए क्रेडिट। इनकम अगर बढ़ेगा तो ये क्रेडिट, अगर एसेट बढ़ेगा तो ये आपका डेबिट, राइट। देन दिस इज द journal entry. Then let us go to the next journal entry, that is on 15th. So on 15th, 15/4/2022, on 15th Sujit paid 47,000 इन फुल सेटलमेंट। मैं सुजीत को सेल किए थे 50,000 रुपया का चीज और वो 47,000 पेमेंट किया, बोला है कि और पेमेंट नहीं करेंगे। मैं भी बोले ठीक है। सोच लीजिए एक बार, आपको कस्टमर से 50,000 मिलना है, कस्टमर 47,000 दे के बोलता है कि मैं और नहीं दे नहीं पाएंगे, और जो सेलर बोलता है यस आई एग्री, 47,000 में सेटलमेंट हो गया, फ्यूचर से आपको में परेशानी नहीं करेंगे, आपका जो डेट था वो पूरा हो गया 47,000 से। उसका मतलब इधर देखिए, उसका मतलब में 3,000 रुपीज में छोड़ दिए, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। दिस इज ऑल्सो ए कैश डिस्काउंट, क्योंकि मेरे को जल्दी पैसा मिला है इसलिए वो 50,000 देना था, 47 देता है तो मैं बोले कि ठीक है बेटा और देना जरूरी नहीं, तो 3,000 रुपया में छोड़ देते हैं। परचेस करने का टाइम में मेरे को डिस्काउंट मिला था, ये मेरा इनकम। जब पैसा मिलता है कस्टमर से, मैं छोड़ देते हैं पैसा, मैं डिस्काउंट देते हैं, ये मेरा एक्सपेंडिचर। ये देख लीजिए कैश डिस्काउंट, उसका बारे में थोड़ा आपको बोल देते हैं। एक होता है ऑन पेमेंट टू क्रेडिटर, और यू कैन से सप्लायर। कोई भी सप्लायर को मैं पैसा देते हैं तब वो पैसा छोड़ देता है। कौन छोड़ता है पैसा? क्रेडिटर इज गिविंग डिस्काउंट, इसलिए जो डिस्काउंट मिलता है उसको मैं बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। दिस इज माय डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव मेरा इनकम होता है, मेरा इनकम इंक्रीज। इनकम इंक्रीज करने से क्रेडिट, ये भी नोट आप लिख सकते हैं। नाउ जब मैं कस्टमर से कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से कलेक्शन करते हैं, इधर जिस तरफ सुजीत इज माई कस्टमर, तब मैं seller is giving discount।
जब तुम डिस्काउंट देते हैं, ये तो क्रेडिटर देता है, तुमको मिलता है। इधर तो तुम खुद बिजनेस इज गिविंग डिस्काउंट, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंडिचर, ये आपका डेबिट। सो डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंडिचर, दिस इज योर एक्सपेंडिचर, दिस इज योर डेबिट, राइट? हियर ऑल्सो हियर 50,000 से हमको मिला है 47,000। ये तो नहीं बोला है कि चेक में पेमेंट किया, तब कैसे पेमेंट किया? कैश। चेक नहीं बोलने से कैश, बैंक नहीं बोलने से कैश। सो मेरा पास कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट, या का 47,000। 3,000 इज योर डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि मैं छोड़ देते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये आपका, ये भी डेबिट 3,000। और आपका जो डेटर था, वो डेटर आपका डिक्रीज, डेटर भी आपका एसेट है, और एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट। सुजीत आपका डेटर था, मैं उसको डेबिट किए थे, आज वो पैसा दे दिया, इसलिए उसको क्रेडिट करना है। नाउ टू सुजीत अकाउंट, ये आपका 50,000। सो देख लीजिए, ये आपका एसेट डिक्रीज, इसलिए क्रेडिट। एसेट डिक्रीज, इसलिए क्रेडिट। ये आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ये आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज, डेबिट। ये आपका एसेट, कि आपको कैश मिल रहा है, इसलिए एसेट इंक्रीज, डेबिट। सो एसेट इंक्रीज, asset decrease, my expenditure increase. Being the cash receipt from Sujit, इस तरफ आप लिख दीजिए, being the cash receipt from Sujit in full settlement, right? So this is the entry on 15/4/2022. Let us now come to another adjustment entry, that is on 21. So 21 में एंट्री आपका टेकन गुड्स कॉस्टिंग 1,000 फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स ले जाते हैं, जब प्रोपाइटर, मान लीजिए कि इधर प्रोपाइटर का नाम था अजीत, अजीत इज टेकिंग गुड्स, अजीत इज द प्रोपाइटर, इधर प्रोपाइटर है अजीत, राइट? सो अजीत इज द प्रोपाइटर हियर, अजीत, अजीत इज द प्रोपाइटर, and the proprietor is taking goods from the business, गोडाउन से, जो गुड्स गोडाउन है, गोडाउन से वो पैसा लेता है। कितना गुड्स? ना 1,000 रुपीज का गुड्स वो लिए हैं। मान लीजिए कि आपका एक ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप से आप 1,000 रुपीज गुड्स घर का कंजम्पशन के लिए आप ले लेते हैं। जब प्रोपाइटर पैसा देता है, उसका नाम आपको मैं कितना बार बोले हैं? कैपिटल। जब प्रोपाइटर पैसा देते हैं, कहां? बिजनेस को, ये बिजनेस है, याद रखिए।
जब प्रोप्राइटर बिजनेस को पैसा देता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, सो इट इज कैपिटल। प्रोप्राइटर को मन करता है कि मैं कुछ पैसा ले लेंगे बिजनेस से, तब उसका दूसरा नाम होता है, सेम आदमी, दोनों नाम है, एक नाम का नाम कैपिटल, दूसरा का नाम होता है ड्राइंग्स, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। सो दिस इज योर ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स ये मेरा एसेट, राइट। ये कैपिटल का उल्टा होता है, कैपिटल आपका लायबिलिटी, ये आपका एसेट। और ड्राइंग्स आपका बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, तब ये डेबिट। सो क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000, ये आपका एसेट, इसलिए डेबिट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेस। क्योंकि आपका जो गुड्स था, जो परचेस गुड था, पर गुड्स परचेस आप किए थे, उसी से 1000 रुपीज इज टेकन बाई सुजी, 1000 रुपीज ड्राइंग्स, इसलिए आपका परचेस गुड्स कम हो जाएगा, राइट। सो एक्सपेंडिचर, आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर, आप बिजनेस से परचेस किए थे गुड्स, 1000 पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले लिए, इसलिए आपका बिजनेस का जो परचेस था वो कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डिक्रीज, इसलिए ये आपका एक्सपेंडिचर डिक्रीज। एक्सपेंडिचर डिक्रीज होने से क्रेडिट, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट। कैसे एक्सपेंडिचर डिक्रीज में और एक बार बोलते हैं, मान लीजिए कि आप दुकान में 100 रसगुल्ला परचेस किए थे सेल करने के लिए, 10 रसगुल्ला आप खुद घर के लिए रख दिए, तो बिजनेस का जो 100 था वो अभी कम हो के आपका 90 हो गया रसगुल्ला। सो बिजनेस का जो एक्सपेंडिचर परचेस था 100 रसगुल्ला, वो आपका अभी 90 रसगुल्ला हो गया। सो आपका एक्सपेंडिचर डिक्रीज। एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज करेगा तब ये क्रेडिट, और एसेट बढ़ेगा तब ये डेबिट। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट journal entry, and this is on 25th. This is a beautiful entry on loan payment. आपका 25th में जो एंट्री है, पेड बैंक लोन विथ इंटरेस्ट फॉर 6 months। आप बैंक लोन पेमेंट कर रहे हैं 6 month इंटरेस्ट, विथ 6 month इंटरेस्ट। आपका बैंक लोन कितना था? फर्स्ट एंट्री में आपका लोन था 10% लोन फ्रॉम बैंक। मैं आपको समझाते हैं कि 10% लोन फ्रॉम बैंक कितना, ये आपका 10,000, ये 10% लोन था। साल में 10% आपका इंटरेस्ट, मैं लोन को पेमेंट कर रहे हैं, मेरा लायबिलिटी घटेगा, मैं लायबिलिटी डिक्रीज। इंटरेस्ट दे के लोन पेमेंट करते हैं। सो 10% लोन, इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6 month का 10,000, 10% इंटू 6 month का 6/12 कर दीजिए, वो 500।
तब आप जब पेमेंट करेंगे 10,500 पेमेंट करेंगे, राइट। सो आपका लोन इज ए लाइबिलिटी, आपका लोन पेमेंट हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से ये आपका लाइबिलिटी डिक्रीज इधर डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट, ये आप इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आप लोन लिए, लोन का इंटरेस्ट देना ये आपका एक्सपेंडिचर, किसी को इंटरेस्ट देते हैं एक्सपेंडिचर, किसी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये इनकम, क्योंकि आपको मिलेगा, जब आप देते हैं वो एक्सपेंडिचर, इसलिए ये आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तब ये आपका डेबिट। और आप पेमेंट करते हैं, आप चेक में पेमेंट करते हैं, कुछ नहीं बोला है तो आप सोच लीजिए कि आप कैश में लोन पेमेंट कर देते हैं। सो आप ये जो पेमेंट करते हैं आपका कैश बैलेंस घटेगा, कैश इज योर एसेट, एसेट डिक्रीज होने से ये क्रेडिट हो जाएगा, एसेट डिक्रीज, ये एसेट कैश में पेमेंट करते हैं, कैश आपका एसेट, पेमेंट करने से कैश घटेगा, इसलिए कैश इज योर क्रेडिट। तब जर्नल एंट्री क्या होगा ना, 10% लोन अकाउंट डेबिट, ये आपका 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये आपका 500 तो कैश अकाउंट, ये आपका 10,500। सो बीइंग द लोन पेड विथ इंटरेस्ट, being the loan paid with interest, अगर आपको नरेशन लिखने में प्रॉब्लम होता है तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है वो बीइंग लगा के उसको लिख देने से भी हो जाता है, और यू विल राइट इन योर ओन लैंग्वेज दैट इज बीइंग द लोन पेड विथ इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ए लोन, दिस इज लाइबिलिटी। लोन पेमेंट करने से आपका लाइबिलिटी घटेगा, लाइबिलिटी डिक्रीज, इसलिए डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, दिस इज एन एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट इज डेबिट। और कैश आपका घटेगा, कैश विल डिक्रीज, देयरफॉर इट इज क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, we will in the next class we will go for the more number of problems including GST, income tax, etc. And please keep in track with the class, and I hope you will subscribe the channel and offer your comments. Thank you. In the next class we will go for the journal entry on purchase and sale involving the GST entries, how the GST is treated in the journal, that you will also know in the next class. Thank you.